آج لوگ چاند پہ کمنڈے ڈال رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چاند پہ جا کر کے اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، لیکن وہ آج جا رہے ہیں، وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کے چاند نے زمین پہ رہ کر کے چاند کی اوقات بتائی تھی۔ میرے امام نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور جب یہ چاند جھکنے کی بات چلی ہے نا، ایک شاعر تک یہ بات پہنچتی ہے حضرت، تو انہوں نے کہا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں۔ آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ، میں ایسے خطیب نہیں ہوں کہ میں آپ کو بار بار بولوں، کیونکہ اگر آپ کو اچھا لگے گا آپ خود ہی بولیے گا۔ کہا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں، جن کے لیے خود کعبہ جھکا سوچ محمد کیسے ہیں۔ اور فرماتے گئے کہ چاند سے جب تک چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، کہ چاند سے جب تک چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں، کہا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں۔ یقین مانے کہ آج کی یہ مجلس ختنہ مسنونہ عقیقہ مسنونہ کے مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں ختنے پہ گفتگو کر دوں حضرت۔ آج ملک ہندوستان میں تقریباً ہماری پہچان کئی طریقے سے ہوتی ہے، ہماری شناخت کئی طریقے سے ہوتی ہے، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہوتی ہے، سامنے والا بندہ پہچان دیتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اگر ہمارے جسموں پر اسلامی لباس ہوتے ہیں سامنے والا بندہ پہچان لیتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اگر ہمارے چہروں پہ داڑھیاں ہوتی ہے سامنے والا بندہ پہچان لیتا ہے یہ مسلمان ہے۔ لیکن میاں جی اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو، کسی کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نہ ہو، کسی کے جسموں پر اسلامی لباس بھی نہ ہو، تو اس بندے کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے حضرت جب میں بچپنے میں تھا میرے ابا جی نے ختنہ کروایا تھا۔ یہ تو اندرونی معاملات ہے، مسلمانوں کا چال ڈھال ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ سروں پہ ٹوپیاں بھی ہونی چاہیے، چہرے پہ داڑھیاں بھی ہونی چاہیے، جسموں پر اسلامی لباس بھی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی دور سے دیکھے نا تو دیکھتے کی پہچان جاگے کہ آنے والا کوئی اور نہیں آ رہا ہے، مدینے والے کا غلام آ رہا ہے، مدینے والے کا عاشق آ رہا ہے۔ بات ہے ماشاءاللہ۔ آج کیا بات ہے جی کہ آج ہم پہچانے نہیں جاتے ہیں۔ آج اگر علاقے میں چلے جائیں شاید صاحب پتہ ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم کس کو سلام کریں کسے سلام نہ کریں۔ اگر کوئی نیا مولانا پہنچ جائے نا تو لوگ سسپینس پہ پڑ جاتے ہیں کہ آخر مسلمان ہے، پلٹ کے سلام کر دیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں واللہ یہ بھی مسلمان ہے جو ہمیں سلام کیا ہے۔ نہیں یارو یقین مانیے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے نا کہ دور سے لگے کہ واقعی مسلمان ہے۔ آج ختنے پہ اگر بات چلتی ہے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اسی کیرل کی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کیے گئے تھے اور بال وبھاگ والوں نے یہ پٹیشن دائر کیا تھا، کہا تھا کہ مسلم لوگ جو ہے اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسے ختنہ کراتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ختنہ یہ ہماری سنت ہے، نبی کی سنت ہے، اور میرے رسول نے فرمایا کہا کہ جو فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا رب کائنات اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا۔ سبحان بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ اگر ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ایک سنت کو آپ ہماری کر رہے ہیں تو یقیناً رب قدیر آپ کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ختنہ بھی بڑی عجیب شے ہے، کبھی کبھی ختنے سے ہماری پہچان بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ختنے سے ہماری شناخت بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قاری اظہر صاحب اسی اڑیسہ کی سرزمین پر تقریباً آج سے 4 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا، بے شمار لوگ مارے گئے تھے، بے شمار لوگ اپنی جانوں کو قربان کیے تھے، لیکن اس میں کچھ ایسی لاشیں تھیں جن کا پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ ریلوے والوں نے پہچانا کہ یہ مسلمان کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یہ غیروں کے حوالے کر دیا، لیکن کچھ ایسی لاشیں تھیں جسے پہچاننا مشکل تھا کہ آخر سے قبرستان بھیجا جائے یا اسے شمشان بھیجا جائے۔ اللہ اکبر، جب پہچاننا مشکل تھا ان لوگوں نے فیصلہ کیا، ان لوگوں نے تدبیر نکالی، کہا کہ جب انہیں پہچاننا مشکل ہو رہا ہے نا تو اللہ اکبر ایسی خبریں پڑھتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے پینٹ کھول کر کے دیکھو ان کے ختنے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اگر مرنے کے بعد بھی آپ کی عزت سلامت نہ رہے، مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑ جائے کہ مجھے پینٹ کھول کر کے دیکھو، مرنے کے بعد بھی اگر آپ کی عزتوں کے جنازے نکلتے رہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مسلمان ہیں؟ جب ایک مسلمان کی موت ہونا تو اس قدر موت ہو کہ مرتے وقت بھی وہ کہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا
माशाअल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, मेरा लाशा भी कहेगा क्या तेवर है, बहुत खूब, सलाम। बहुत उम्दा। हजरात पता है आज बड़ी मुश्किल से हमें ये बात कहनी पड़ती है कि आज मुस्लिम बस्तियों में चले जाएं आप, अल्लाह अकबर, खतने से ज्यादा ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, ये खतना कराना ये नबी की सुन्नत है। ये अगर उलमा से पूछेगा, अगर कोई बंदा अपने बच्चों को खतना नहीं कराता है क्या वो बच्चा मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा, उलमा जवाब देंगे आपको कि हाँ वो बंदा मुसलमान रहेगा, क्योंकि सुन्नत को तर्क करने से बंदा काफिर नहीं होता है। लेकिन यारो हम तो सुन्नत को तर्क किए के हम तो सुन्नत की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्ज को तर्क किए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुम्मा जुम्मा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ईद और बकरीद पर टकरा देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यारो ये खतना यकीनन हमारी सुन्नत है, लेकिन खतने से भी ज्यादा अपने बच्चों की जिम्मेदारी यह है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि हमारा बच्चा मुसलमान तो बन गया है, लेकिन हमारा बच्चा मुसलमान के रास्ते पे कैसे चलेगा, हमारा बच्चा नमाजी कैसे बनेगा, हमारा बच्चा नेक रास्ते पे कैसे चलेगा। अगर इसकी फिक्र आप नहीं करते हैं तो कयामत के दिन रब की बारगाह में आप हिसाब देने के लिए तैयार रहे। क्योंकि मैं मुस्लिम मुआशरे में मुस्लिम बस्तियों में जाकर के देखता हूँ हर दूसरा बच्चा शराबी है, हर दूसरा बच्चा जुआरी है, हर दूसरा बच्चा बेनमाजी है। आखिर क्यों है? मैं आपसे पूछ लूं तो कहेंगे कि हजरत उसका बाप ही अगर शराब पी रहा हो तो अपने बेटे को कैसे कहेगा कि बेटा तू शराब मत पी, उसका बाप ही अगर जुआ खेल रहा है तो अपने बेटे को कैसे कहेगा कि बेटा तू जुआ ना खेल, अपने अगर उसी का बेटा अगर उसका बेटा अगर बेनमाजी है तो अपने बेटे को कैसे कहेगा कि बेटा तू नमाज पढ़। यकीन मानिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी नेक रास्ते पे चले, मेरा बेटा भी नमाजी हो, मेरा बेटा भी शराब से पाक हो, तो यकीन मानिए कि पहले आपको नमाजी बनना पड़ेगा, पहले आपको झूठ से पाक होना होगा, पहले आपको गिबत से पाक होना होगा। अगर आप इन कामों को कर देते हैं तब आप ये कहेंगे कि ताला ला ये शेबा नहीं बेवफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में जहां को महव कर दे नारे अल्लाह। क्या बात है माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। आज अगर देखा जाए हजरत सैयद साहब किबला मुस्लिम बस्तियों में चले जाएं, बड़े ताज्जुब के साथ में बात ये कहने पड़ते हैं 2.5% लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, 2.5% सिर्फ पढ़ाते हैं, और 2.5% वालों पे नजर क्या होती है पता है? वही बच्चा इंजीनियर भी बने, वही बच्चा डॉक्टर भी बने, वही बच्चा प्रोफेसर भी बने, वही बच्चा तमाम तरह की डिग्रियां भी हासिल करे। और जहां तकरीबन अपने बच्चों को 57.5% पढ़ाते हैं स्कूलों में, लेकिन उन स्कूलों का जायजा ले। मैं वही पे बात अर्ज करूं, आपकी मेहनत से आपका बेटा हाफिज है, आपकी मेहनत से आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है, आपकी मेहनत से आपका बेटा प्रोफेसर बन सकता है, आपकी मेहनत से आपका बेटा दुनिया के तमाम तरह के डिग्रियों को हासिल कर सकता है। वहीं पे आपकी मेहनत से आपका बेटा हाफिज कुरान भी बन सकता है, वहीं पे आपकी मेहनत से आपका बेटा यहाँ तो कर सकता है कि कम से कम फातिहा खानी भी कर सकता है। आपकी मेहनत से आपका बेटा आपके मरने के बाद जनाजे की नमाज भी पढ़ा सकता है। लेकिन आज देखा जाता है ना कि अगर हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल आया, कोई त्यौहार आया ना हजरत, तो सबसे पहले इमाम साहब को पकड़ते हैं, हजरत चलिए ना हमारे यहाँ फातिहा कर दीजिए। अभी शब बारात की रात गुजरी है ना, आप देखते होंगे कि हजरत को इमाम साहब को हर घर में जाना पड़ता होगा। क्या बहैसियत मुसलमान हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम फातिहा करने का तरीका सीख जाए? क्या बहैसियत मुसलमान हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम मुर्गी हलाल करने का तरीका सीख जाए? बहुत सारे लोगों को तो हमने ये भी देखा सैयद साहब किबला कि जब मुर्गी हलाल कराने की बारी आती है ना, लोग चौड़े चौड़े लेकर के मस्जिद की तरफ आते हैं, मदरसे की तरफ आते हैं, इमाम साहब जल्दी से निकलिए मुर्गी इंतकाल करने वाली है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मुर्गी रास्ते में इंतकाल कर जाती है, और अगर मुर्गी इंतकाल कर गई तो फिर जाकर के सदर साहब सेक्रेटरी साहब के दरवाजे पे टांडो करेंगे, आपने कैसा इमाम रखा हुआ है कि आपके इमाम साहब की वजह से आज हमारी एक मुर्गी मर गई है। अल्लाह अकबर, ये लोग शिकायतें करते हैं और कोई न कोई बहाना तो तलाश करते हैं ना जी। यकीन मानिए कि लोगों ने कहा ना कि लोग अपने किरदार को नहीं बदलते हैं, लोग अपने अमाल को नहीं बदलते हैं, लोग अपने कैरेक्टर को नहीं बदलते हैं। मौका मिलता है तो इमाम को ही बदल देंगे, कहेंगे कि ना ना ये ठीक नहीं है। यारो नहीं, जिनके पीछे हम नमाजें पढ़ते हैं, जिनकी कदर करते हैं, जो हमारे नमाजों का शामिल है, यकीनन आपको उसकी कदर करनी है। अगर आप इमाम की कदर नहीं करेंगे ना तो यकीन मानिए कौन ऐसा बंदा है जो अपने बेटे को आलिम दीन बनाएगा, कौन ऐसा बंदा है जो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएगा। एक लोग शिकायत भी करते हैं हजरत है, वो करते हैं कि हजरत अगर हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बना देंगे, अपने बेटे को आलिम दीन बना देंगे तो मेरा बेटा कमाएगा क्या, मेरा बेटा खाएगा क्या। ये लोग शिकायतें खूब करते हैं। और दूसरी जानिब कहते हैं कि मौलाना लोग जो है ना बहुत खाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं मौलाना लोग बहुत खाते हैं, और कहिए कि अपने बेटे को पढ़ा दीजिए, कहेंगे ना ना हजरत अगर पढ़ लेगा तो खाएगा क्या। यकीन मानिए जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, जितना बेहतरीन खाना हम लोग खाते हैं ना उतना आप सोच के भी नहीं खा सकते।
समझते हैं, क्योंकि जिस बंदे के यहाँ महीने में एक दिन बारी हो ऐसा बंदा दाल भात चटनी नहीं भेज सकता है, बगैर मुर्गे की बात नहीं होती है। लेकिन अब लोग कहते पहने का क्या, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ब्रांडेड कपड़ा पहनते 8,000 में कि आप सोच के भी नहीं पहन सकते हैं। मैं यही पे अर्ज करूं, अपने बेटे को आलिम दीन जरूर बनाए। आज मौलाना गुलाम वारिस साहब जामिया अशरफिया से पढ़ करके आए हुए हैं। यकीन मानिए कि जब तक ये इल्म दीन को बांटते रहेंगे सवाब इन्हें भी मिलेगा, इन्हें वालिद मोहतरम को भी मिलता रहेगा। जब वो कब्र में चले जाएंगे ये नेक काम करेंगे, यकीन मानिए कि उनके कब्र में उन्हें सवाब मिलता रहेगा। ये है सदका जारिया। लेकिन अपने बेटे को हम काहे बनाएंगे जी? यही पेश करूं, जहां पे हम अपने बेटे को पढ़ा रहेंगे ना, अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की जरूरत है। बेटियों को भी दीन की तालीम देने की जरूरत है। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, आज हमारी बेटियां बेरारवी के शिकार हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पढ़िए, तकरीबन 4 सालों में 8.5 लाख से शायद मुस्लिम बच्चियों ने गैरों के साथ भाग करके शादी किया है। इसका रीजन पता है क्यों है? इसका रीजन ये है कि हमारी बेटियां शहर जाती है कॉलेज के नाम पर, हमारी बेटियां स्कूल जाती है कॉलेज के नाम पर, वहां गैर भी पढ़ते हैं, हमारी बेटियां भी पढ़ती है। जब साथ में पढ़ती है दोस्ती होती है, दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि वो बेटियां गैर के तहलीस तक वो पहुंच जाती है। यकीन मानिए कि वालिदैन भी उसके जिम्मेदार हैं कि अपनी बेटियों के हाथ में एक लंबा चौड़ा मोबाइल धरा देते हैं और बेटियों के निगहबानी नहीं करते हैं कि हमारे बेटियों के मोबाइल में रिचार्ज कहां से आते हैं, हमारी बेटियां किन किन से बात करती है, कितने घंटे चैट करती है, वो इसका ख्याल नहीं करते हैं। जब बेटियां भाग जाती है ना, तब वही बंदा मुआशरे में सर उठा करके चलने के काबिल नहीं होता है। पहले आप निगरानी क्यों नहीं करते हैं? आप तो इतना एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटियों पर भी नजर रखने की जरूरत है, अपनी बेटियों को भी तालीम देने की जरूरत है। लोग समझते कि नहीं अपनी बेटी को आईए बीए कर देंगे, ये बहुत मसला है। लेकिन मैं एक चौंकाने वाला मसला अर्ज कर रहा हूँ। मैं लातेहार में रहता हूँ, सैयद साहब किबला, मैं लातेहार में रहता हूँ। पता है एक सैयद साहब, एक हाजी साहब मेरे पास आए, आने के बाद अर्ज करते करते कि मुफ्ती साहब मैं अपने पोते के लिए रिश्ता देखने जा रहा था। जरा सुने, ताकि पोते के लिए रिश्ता देखने जा रहा था। यकीनन मेरा पोता नमाजी भी था, मेरा पोता यकीनन रोजेदार भी था, बाशरा भी था। अल्लाह अकबर। जब जैसे ही मैं रिश्ता देखने जा रहा था, मेरे पोते ने कहा कि दादाजी जब आप जा रहे हैं रिश्ता देखने के लिए, कहा कि जब चाहिएगा ना तो लड़की वालों से दुनियादार वाला ना सवाल ना कीजिएगा, लड़की से उसका नाम ना पूछेगा, लड़की से उसका खानदान ना पूछेगा, कहा बस एक सवाल का जवाब पूछेगा, अगर सवाल का जवाब मिल जाए रिश्ता वहीं पे मुकम्मल कीजिएगा, आ जाइएगा। अल्लाह अकबर। हाजी साहब का कौल है कि जैसे ही जाते हैं लड़की आती है, लड़की आती है, अल्लाह अकबर, सारे मौजूद हैं, घर वाले भी मौजूद हैं, खानदान वाले भी मौजूद हैं, रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। चूंकि लड़की आती है, हाजी साहब ने कहा कि बेटी मैं तुमसे दुनियादार वाला सवाल ना करूंगा, मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा, तुमसे तुम्हारा खानदान नहीं पूछूंगा। कहा कि बेटी मैं तुमसे बस एक सवाल करूंगा, अगर इस सवाल का जवाब तूने दे दिया ना तो मैं यही पे रिश्ता मुकम्मल करूंगा और चला जाऊंगा। याद रखना ये मेरा सवाल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे होने वाले शौहर का सवाल है। और मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूं ना, वो कोई जाहिला लड़की नहीं थी, बल्कि वो डबल एमए की हुई लड़की थी। अल्लाह अकबर। सारे लोग महवत है क्या आखिर वो हाजी साहब क्या सवाल करने वाले हैं? कहा कि बेटी सिर्फ इतना बता दे कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जो ही सवाल करना था ना, वो डबल एमए की हुई लड़की इस्लाम का सबसे छोटा सवाल गुस्ल के कितने फराइज है इसका जवाब नहीं दे पाती है। अल्लाह अकबर। हाजी साहब ने कहा कि बेटी तुमसे मेरा कोई शिकायत नहीं है, जिस बच्ची को ये बताना हो, जिस लड़की को ये बताना हो कि नापाक हो जाने के बाद पाक होने का तरीका क्या है, जिस बच्ची को ये बताना हो कि अगर हम नापाक हो जाए तो पाक कैसे हो, ऐसी लड़की हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। आज हम जाते हैं रिश्ता करने के लिए, आज हम जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, तो पहले ही अगुआ से बात कर लेते हैं कि वो सामने वाला बंदा क्या देगा, वो फटफटवा देगा या नहीं देगा, कितना माल कैश देगा। और जब वही बच्ची आती है ना, मॉडर्न खोज करके लाते हैं, जींस वाली लेकर के आते हैं, रील वाली लेकर के आते हैं, इंस्टा वाली लेकर के आते हैं। जब वो नाचते हुए आती है ना, तब जाकर के मौलाना साहब की बारगाह में आते हैं, इमाम साहब की बारगाह में आते हैं, सैयद साहब की बारगाह में आते हैं। हुजूर कोई तावीज दे दीजिए, हमारी बहू हमारी बात नहीं सुनती है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है, हमारा बेटा हमारी बहू की बात सुनता है। अल्लाह अकबर। अगर नेक खातून को अपने घर में नहीं लाएंगे ना, तो याद रखिएगा तावीज क्या है, पूरा मौलाना को गले में सड़ा लीजिए फिर भी कुछ काम आने वाला नहीं है।
समझा, नेक खातून को लाने की जरूरत है, लेकिन हम नेक खातून लाएंगे कहाँ भाई? अभी यहाँ पे मैं आ रहा था तो पता है नेक खातून, आज लोग कहते हैं कि मौलाना से भी शादी नहीं कर रहा है, साहब बोला तो जो चाहता हूँ। अभी हम लोग बड़गढ़ में थे तो एक साहब क्या करने लगे, कहा करने, मुझे जुमला वो याद आ रहा है, बड़गढ़ में अभी मैं रास्ते में आ रहा था, उस बंदे का कॉल था, कहा कि एक बच्ची की शादी लगी हुई थी, शायद दुधवल टाइप के दुधवल इलाके में लगी हुई थी शादी, शादी फिक्स हो गई थी। लड़की को मालूम हुआ कि मेरी शादी एक आलिम से हो रही है, रिश्ता एक हाफिज कुरान से लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। वो लड़की का कॉल पता है, कहा कि मैं एक आलिम दीन से शादी नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर। कहा कि उस हाफिज कुरान से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये सब गवाह हैं। कहा कि हजरत कल रिश्ता कटा था, आज उस लड़के का रिश्ता आया हुआ है, 2 लोग आए थे, रिश्ता मुकम्मल किए हैं और रिश्ता फाइनल हो गया है। अल्लाह अकबर। मैंने एक जुमला कहा था, कहा कि आप परेशान न हो, अगर वो बेहया लड़की यकीनन ऐसा जुमला बोली है तो एक आलिम दीन के साथ उसके रहने का मकाम नहीं था। उस बेहया को यकीनन शराबी मिलेगा, उस बेहया को यकीनन जुआरी मिलेगा। जब वो बेहया को अल्लाह अकबर वो शराबी पीटेगा ना, जब उस बेहया को वो शराबी मारेगा ना, तब पता चलेगा कि आलिम दीन की कदर क्या होती है। आज तो लोग आलिम दीन से कहते कि नहीं नहीं वो 8,000 10,000 में क्या होता है। मैं आपके साथ जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं, एक आलिम दीन अपने बच्चों को जितना अच्छा खाना खिला सकता है ना, जितने अच्छे से अपनी बीबी को रख सकता है ना, कोई बंदा 1 लाख कमाने वाला भी इतने अच्छे से नहीं रख सकता है। माशरे में देखा है आपने, देखा है आपने कि आलिम दीन की बीबी गई है काम करने के लिए, नहीं, वो सारे फैसिलिटीज को अपने घर में रखता है, लेकिन मुआशरे का एक पैगाम बन चुका है, नजरिया बन चुका है कि नहीं हमें शादी करनी है तो जींस पैंट वाले से करें, यकीन कोई मना नहीं करता है। लेकिन एक आलिम दीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यकीनन अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाए, अपने बेटों को आलिम दीन बनाए, अपने बेटों को इतना कम से कम बनाए कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर जाकर के वो फातिहा पढ़ सके। क्या बात है, वो ऐसा नहीं करते हैं ना तो याद रखिएगा अल्लामा इकबाल का कौल है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। बात है, बहुत समझा आपने। आज मदारिस को टारगेट किया जा रहा है। यकीनन आप सोचते होंगे कि नहीं 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 नहीं, अभी हमारे पास उलमा है, अभी हज़रत किबला बता फरमा रहे थे ना, यकीनन अगर 50 साल इस इलाके में किसी आलिम दीन को बैन कर दिया जाए ना तो आज आने वाले दौर में आप यकीनन बुतों की पूजा करेंगे। आप वो दौर भूल गए हैं। पुराने लोग बैठे हुए उनसे पूछेगा कि वो जमाना भी आप लोगों ने देखा है कि हमारे शहर में हमारे गांव में कोई ऐसे बंदे भी आते थे जो शहर से आते थे और वो छुरी में दब करते थे और साल भर तक उसी छुरी से लोग अपने जानवर को हलाल किया करते थे। वो दौर आपने देखा या नहीं देखा है? अगर अपने बेटे को आलिम दीन नहीं बनाएंगे, अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बनाएंगे तो यकीनन आलिम दीन कहां से आएंगे? लोग कहते तनख्वाह कम है। मैं यही पे टिप्स दे देता हूं आपको, अपनी तकरीर में जुमला में कह भी देता हूं कि अगर आपको लगता हुआ कि तनख्वाह कम है तो तनख्वाह देने की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में है मियां जी। इमाम साहब की तनख्वाह, आलिम साहब की तनख्वाह 25,000 रुपए कर दीजिए, 25,000 रुपए कर दीजिए। और जिस दिन आपने 25,000 रुपए कर दिया ना, हर बंदा सोचेगा कि मेरा भी बेटा हाफिज कुरान बने, हर बंदा सोचेगा कि मेरा भी बेटा आलिम दीन बने, क्योंकि जहां चपरासी की भी नौकरी निकलती है, चपरासी की भी वैकेंसी निकलती है ना, लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं कि मेरे बेटे को ये नौकरी में असर आ जाए। लेकिन जब 25,000 की नौकरी निकलेगी तो बंदा क्यों नहीं सोचेगा कि मेरा भी बेटा हाफिज कुरान बने? क्यों नहीं सोच सकता हजरत? और हो भी सकता है भाई, काहे नहीं हो सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने मालदार हैं ना, इतने मालदार हैं कि हम हर घर में कम से कम 3 मोबाइल होंगे, 3 मोबाइल तो होंगे कंपलसरी में। अगर एक मोबाइल में 300 रुपया भी रिचार्ज कराते हुए तो पर मंथ 900 रुपए अंबानी को दे देते हैं, लेकिन पर मंथ इमाम साहब के 50 रुपए देने में भी हमारी नानी मर जाती है। जो सदर सेक्रेटरी होंगे, जिम्मेदारान होंगे, वो जानते होंगे कि तनख्वाह तसिलना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है कि कितनी चप्पलें घुस जाती है मांगते मांगते, लेकिन फिर भी लोग देते नहीं है। हाल यही है, लोग नहीं देते हैं। हालात कहते हैं कि ना ना अभी हालात खराब है, अभी बाद में आइएगा। 50 रुपए देने के लिए हालात खराब है, लेकिन बंदा 4 हफ्ता में 4 दिन गोश्त खाता था वो खाएगा, वो बच्चों का फीस भरता था वो भरेगा, रिचार्ज कराता था वो करवाएगा, लेकिन पैसा देने के लिए कहाँ नहीं है? मस्जिद में नहीं है। याद रखिएगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के आने वाले दिनों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज कायम करें। और यकीनन आप नहीं करते हैं ना तो वो इर्तदाद का वो दहाना पहुंच चुका है कि आज हमारे मुआशरे में जिस तरीके से स्कूलों में हमारे बच्चों के ईमान छीने जा रहे हैं, आप देखते क्यों नहीं है?
जाकर के स्कूल में देखिएगा कि हमारे बच्चों के साथ क्या होता है। अल्लाह अकबर, ईमान छीने जाते हैं। ईमान अगर अपना स्कूल होगा ना जी तो हमारे सिलेबस चलेंगे, हमारा निसाब चलेगा, लेकिन अगर गैर का स्कूल होगा ना मियाँ जी तो अल्लाह अकबर उसके तौर पर आपके अपने बच्चों को पढ़ाने होंगे। ये ट्रेंडिंग में चल पड़ेगा। आज तो ये ट्रेंडिंग है। अभी गुजरात में पता है, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, गुजरात में एक मुहिम चलाई गई है, कहा कि जिस भी स्कूल में मुहम्मदन के बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये ट्रेंड चलाया गया है। अगर ऐसा फरमान छत्तीसगढ़ में भी दाखिल हो जाए, यहाँ के लोग अगर कहें कि जिस भी स्कूल में मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्कूल वाले किसके बच्चों को पढ़ाएंगे? आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। आपके बच्चे पढ़ने वाले 10 हैं, उसके बच्चे पढ़ने वाले 90 हैं, तो क्या स्कूल वाले ये कहेंगे कि नहीं नहीं हजरत आप ही आपके बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं, वो कहेंगे कि नहीं, हम 90 वालों को तरजीह देंगे, 90 वालों को हम पढ़ाएंगे। आप अपने बच्चों को घर ले जाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा फरमान जारी हो जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई कॉलेज आपके पास है? कोई यूनिवर्सिटी आपके पास है? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपके पास है? कोई ऐसा इदारा है जो आपके बच्चे ईमान के तहफ्फुज़ के साथ तालीम हासिल कर सके? कोई इदारा है? नहीं है। कव्वाली कराने के लिए हमारे पास पैसे हैं, महंगे जलसे कराने के लिए हमारे पास पैसे हैं, महंगे खतीब बुलाने के लिए हमारे पास पैसे हैं, महंगे शादियां कराने के लिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अपने बच्चों के लिए मदरसों के तामीर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम जब अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी तामीर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। यकीन मानिए कि आज हमारे कौम मुस्लिम का यही हाल है। और मैं जहां भी जाता हूं ये बात अर्ज कर देता हूं कि अगर आने वाले 10 सालों में यकीनन आप देखिएगा कि आपका कोई डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अपने बच्चों को तुम डॉक्टर बनाते नहीं है। आने वाले 10 सालों में यकीनन याद रखिएगा कि कोई बंदा वकील जो है आपका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आने वाले 10 सालों में कोई बंदा आपके हक की आवाज बुलंद करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि लोग आपके नाम से चिढ़ते हैं तो आपके हक की आवाज कैसे उठा सकते हैं? हम अपना नेता भी नहीं चुन सकते हजरत। नेता भी चुनेंगे ना, अगर कोई बंदा वार्ड सदस्य में उठता है ना, वार्ड परिषद में भी उठता है। अभी झारखंड में चुनाव है वार्ड परिषद का, वार्ड सदस्य का। अल्लाह अकबर, पता है एक मुसलमान उठा है ना, 4 लोग उसको हराने के लिए उठेगा। न जीतेंगे न जीते देंगे। आप हालात खाएंगे न खाएं देंगे। एक भी लीडर है कोई मुसलमानों का? नहीं गए। एक सीट है, वहां भी इत्तेहाद के साथ अपने लोगों को हम शामिल करके उसे जितवा नहीं सकते हैं, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो बंदा हार जाए और गैर जीत जाए। और फिर जब हम कूटे जाते हैं ना, फिर जब हम मारे जाते हैं ना, फिर हमारी बच्चियों के साथ जब हिजाब खींचे जाते हैं ना, फिर जब हमारे बच्चों को जो है कॉलेज से निकाला जाता है ना, तब ये डिंडोरा पीटते हैं कि हमारे हक की आवाज बुलंद करने वाला कोई लीडर नहीं है। अपने लीडर तैयार किया आपने? नहीं किया है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई आपके हक की आवाज भी बुलंद करता है ना, तो सबसे पहले उस बंदे को हम बी टीम साबित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बंदा तो बी टीम वाला है, वो तो बीजेपी का एजेंट है, वो तो फला का एजेंट है। नहीं, बल्कि अपने लोगों को इख्तिदार में लाने की जरूरत है। अगर आज आपका बेटा वार्ड सदस्य बनता है तो कल जाकर के वार्ड परिषद बनेगा, कल जाकर के वो एमएलए बनेगा, कल जाकर के वो मंत्री बनेगा, यहां तक कि आपका बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इत्तेहाद के साथ अगर अपने आप को मजबूत करेंगे तब ना। क्यों नहीं हो सकता है जी? 2.5% वाले इस कौम में, इसी मुल्क में 2.5% सिख रहते हैं। सिख जानते हैं आप लोग? ईसाई सिख रहते हैं, पंजाबी जिसे बोलते हैं, जो पगड़ी बांधे रहते हैं। 2.5% इस मुल्क हिंदुस्तान में। और अपने मानने वालों को पता है मनमोहन सिंह को पीएम के कुर्सी पर बैठा दिया है, 2.5% वाले। लेकिन इस मुल्क हिंदुस्तान में 25% हम रहते हैं, लेकिन 25% हो के भी आज कोई एमएलए या कोई मंत्री हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भैया अगर कोई जीत जाएगा तो सबसे पहले ऐसे बंदे को हराने की कोशिश करते हैं। नहीं, इख्तलाफ बाद में रखिए, पहले अपने लोगों को इख्तिदार में भेजने की कोशिश कीजिए। जहां आपके मौत और हयात के फैसले किए जाते हो, जहां आपके कवानीन बनाए जाते हो, जहां पार्लियामेंट में आपके लिए कोई बोलने वाला तैयार नहीं होता है ना, वहीं पे एक बंदा शेर बबर बोलता है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह को जिससे आपने बी टीम साबित किया है। जब तलाक का मसला आता है, जब हिलाला का मसला आता है, जब ट्रिपल तलाक के मसले आते हैं, जब वक्फ बिल का मसला आता है, जितने भी औकाफ की जमीनों की हिफाजत की बारी आती है, तो कोई बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। वही शेर बबर बोलता है और इस अंदाज में बोलता है कि बातिल कुव्वतों के भी दिल थर्राते हैं। और यकीनन अगर वो बंदा आज आपके हक की आवाज उठाता है ना, तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बंदा तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, वो तो भी टीम है। नहीं नहीं, यकीन मानिए कि मुसलमान हो ना, नेता भी हो ना, तो ऐसे हो। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में भी जाता है तो सरों पे टोपियां लगा के जाता है, चेहरे पे दाढ़ियां सजा के जाता है, जिसमें पर इस्लामी लिबास सजा करके जाता है, इस अंदाज में जाता है और वो कहता है
کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ کی حمد میں دنیا سے مسلمان گیا حمد میں دنیا سے مسلمان گیا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم تمام لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے چونکہ میں زیادہ بولنے کی عادی نہیں ہوں اگر پہلے میری تقریر ہوتی تھی انشاءاللہ تعالی اور تقریر ہو سکتی تھی لیکن مجھے جو وقت ملا تھا وہ 1 بجے تک اور میں 12:30 پر بیٹھا تھا اور ابھی 12:58 ہو رہے ہیں 1 بجے سے پہلے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے گا تو شاندار طریقے سے بھرپور طریقے سے گفتگو ہوگی پھر وقت مجھے اجازت دیجیے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالی ہم تمام لوگوں کو سلامت رکھے با کرامت رکھے صاحب خانہ کے گھر میں خیر و برکت کا بے شمار اضافہ فرمائے اور جس بچے کا ختنہ مسنونہ ہونا ہے مولا اس بچے کو علم نافع علم کامل اور علم صالح عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ